First of all, good morning to all of you. In the last video of Accountancy class 11th, we discussed the chapter number 2, Theory Base of Accounting. Under this chapter, we discussed number 1, what is theory base of accounting? Number 2, what are the importance of the theory base accounting? And number 3, GAAP, that is a generally accepted accounting principle. Now we will move to the basic accounting concept. You know very well, basic accounting concept means the fundamental ideas or basic assumption underlying the theory and practices of financial accounting and the broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting professions. यानी कई सारे अकाउंटेंट प्रोफेशंस ने अकाउंटिंग प्रोसेस से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी की क्वालिटीज़ के लिए कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए बेसिक अजम्पशन का रोल अदा करते हैं. सो दे आर बेसिकली 13 important basic accounting terms are studied under this chapter. In the last video we discussed the first basic accounting concept. The first one is business entity concept. What is business entity concept? According to this concept, business has a distinct and a separate entity from its owner. According to this concept, business का जो ओनर होता है और बिजनेस का जो ओनर होता है एंड द बिजनेस, दोनों का रोल सेपरेट होती है, दोनों की एंटिटी सेपरेट होती है. यानी बिजनेस का ओनर जरूर होता है लेकिन उसे बिजनेस से अलग माना जाता है. दैट्स वाई अगर बिजनेस में कोई पैसा लगाता है अपने ही बिजनेस में तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, एंड समहाउ अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता भी है तो उसे हम ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सो एट लास्ट वी कैन से अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस has separate from its business. So all the accounting records are made in the books of account from the point of view of the business unit and not that of the owner. The personal assets and liability of the owner are therefore not considered while recording and reporting the assets and liability of the business. Similarly, personal transactions of the owner are not recorded in the books of the business unless it involves inflow or outflow of business funds. Yes, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है. हम बिजनेस में केवल वही ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं को मॉनिटर करते हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं को एज ए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रीट करते हैं जो बिजनेस से रिलेट होते हैं. ओनर की जो पर्सनल एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसको बिजनेस में कंसिडर नहीं किया जाता, ना उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. अगर बिजनेसमैन अपनी पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाता है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट नहीं किया जाता है, ना तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है. बल्कि वो सारे ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट ज़रूर करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है. बिजनेस की अपनी अलग एंटिटी होती है और ओनर की एक अपनी अलग एंटिटी होती है. सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. यू नो वेरी वेल, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर डन. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 रिकॉर्डिंग, number 1 is identification, number 2 is measurement, and number 3 recording, number 4 is communication, which are studied in the chapter number 1. So the first step of accounting process, that is identification, measurement, recording and communication. So under the step of measurement, we measured all the transaction and events in the monetary forms. Any transaction and events which are related to the business but cannot be measured in the monetary terms, it will not be recorded in the books of account. For example,
honesty of the owner, honesty of the employees. Such kind of qualities can affect the business operation, but it cannot be measured in the monetary terms, so it will be not recorded in the books of account. So according to the money measurement concept, only those transaction and happening in organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of account. यानी हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। ऐसी बात मैंने आपको शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। जब तक रिकॉर्डेशन नहीं होगा तब तक हम कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद ही हम उसका एनालाइज कर पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। सो केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन इवेंट्स को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी में मेज़र कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, रिसिप्ट्स ऑफ इनकम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और such transaction are happening which cannot be expressed in monetary terms. Do not find place in the accounting records of the firm. Okay. For example, appointment of a manager, capabilities of human resource, creativity of its research department and image of organization. These qualities, these events affect the business process, affect the business organization, but it cannot be recorded in the books of account. So that's why it will be not recorded in the books of account. ये सारी एक्टिविटी आप देखोगे तो कहोगे सर ये सारी चीज़ें तो बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। अगर हम किसी मैनेजर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी का, उसकी क्रिएटिविटी अन्य बिजनेसों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इवेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली मनी में मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। सो इन ट्रांजेक्शन इवेंट्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन सिंपली वर्ड वी कैन से only those transactions are recorded in the books of account which can be measured in the terms of money, and all transactions or events are happening which cannot be measured in the monetary terms, it cannot be recorded in the books of account. Now we will move to the next concept. It is a very important concept for the business, that is a going concern concept. According to this concept, business firm would continue to carry out its operation indefinitely. Means कोई भी बिजनेस जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के नहीं स्टार्ट करता है कि हम 1 साल बिजनेस करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे। वो कहता है कि जब तक बिजनेस सक्सेस करेगा, या उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आता है। अगर वो मन में सोच लिया है कि हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो शायद उसे हम बिजनेस की क्राइटेरिया में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू कैरी आउट हिज बिजनेस इनडेफिनेटली टाइम। मतलब बिजनेस का जो ऑपरेशन पीरियड होता है वो डिफाइन नहीं होता, दैट इज फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन अ फोर्सिबल फ्यूचर. This is an important assumption of accounting as it provides very basis for showing the value of assets in the balance sheet. And assets may be defined as a bundle of services. For example, when we purchase an assets, for example, personal computer, rupees 50,000, what we are buying really is the services of the consumer shall be getting over its estimated lifespan, say 5 years. It will not be fair to charge the whole amount of the 50,000 from the revenue of the year in which the assets purchased. Instead, the part of the asset has been consumed or used during a period should be charged from the revenue of that period. The assumption regarding continuity of business allow us to charge
from revenues for a period only that the part of the assets which has been consumed or used to earn that revenue in that period and carry for the remaining amount to the next year over the estimated life of an assets. So we may charge 10,000 every year for the 5 year from the profit and loss. In case of continuous exemption not there, the whole cost 50,000, the present example, we need to be charged from the revenue of the year in which the assets was purchased. After the reading of this passage, आपको ये समझ में आया होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बुक में बहुत अच्छे से दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पहले तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है. ये कॉन्सेप्ट का कहना ये है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो बिज़नेस अनंत समय तक चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, उसका लॉन्ग टर्म पीरियड होगा. उसी के अकॉर्डिंग ही अपने बुक्स में कई तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे बिजनेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है. पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ. व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आप लोग भी करते होंगे. उधार पे सामान खरीद के लेके आ गए, अभी उसका पैसा नहीं दिए, तो जो आपको उधार दे रहा है वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे इस बात का बिलीव है कि ये जिस बिज़नेस को वो उधार दे रहा है वो बिज़नेस काफ़ी टाइम तक चलेगा ना, तभी तो वो उधार दे रहा है. अगर उसे ये पता रहे कि आपका बिज़नेस 4 साल, 2 साल, 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आपको उधार देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड है. इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है. प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट देखिए. कभी कभी आप कोई पेमेंट एडवांस में कर देते हो. क्यों करते हो? इसलिए ही ना करते हो क्योंकि बिज़नेस उस टाइम के लिए भी वैलिड रहेगा, उस टाइम भी रन करेगा. अगर आपको पहले से अगर आपने सोच लिया है कि बिज़नेस को हम 2 साल चलाएंगे, तो क्या आप सेकेंड ईयर के लास्ट में आप थर्ड ईयर के लिए कोई एक्सपेंस करोगे एडवांस में कि थर्ड ईयर के लिए हम बुक कर लें? सपोज़ आपकी मेडिकल की शॉप है, आपने सोच लिया कि 2 साल के लिए हम बिज़नेस करेंगे, मेडिकल की शॉप चलाएंगे. तो 2 साल के बाद जब तीसरे साल आपको रेंट पे करना होगा, तीसरे साल के पहले महीने का रेंट देना होगा, एडवांस में देते हैं. मान लीजिए आप पहले ही दे देते हैं, जनवरी का रेंट आप दिसंबर में ही दे देते हैं, तो क्या आप जनवरी का रेंट दोगे दिसंबर में? नहीं देंगे. तो प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट आया नहीं आया ना. आप इसलिए एडवांस पेमेंट करते हो क्योंकि आप इस चीज़ में बिलीव रखते हो कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा. दूसरी बात, उसी तरह से बिजनेस में एसेट्स भी परचेस की जाती है. सपोज़ आपने एक 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और ये एस्टिमेट किया कि वो कंप्यूटर 5 साल तक चलेगा. पहले तो आपने सोच लिया कि 5 साल तक चलेगा या 5 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है, मतलब वो उसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद वो कंप्यूटर वेस्ट हो जाएगा, मान लेते हैं. तो आपने कंप्यूटर खरीदते वक्त ये नहीं सोचा होगा ना कि 2 साल 3 साल में ही बिज़नेस बंद हो जाएगा. आप तो ये सोचो कि बिज़नेस चलेगा चलेगा, पहली बात. अब जो आपने कंप्यूटर ख़रीदा उसकी एवरी ईयर कॉस्ट क्या पड़ी आपको? 10,000 रुपीज़. क्योंकि भैया 5 साल चलेगा, 50,000 रुपये खरीदे तो एवरी ईयर कॉस्ट विल बी 10,000. तो हर साल का एक्सपेंस क्या है? 10,000. अगर वही चीज़ आपको पता होती कि बिज़नेस 2 साल में ख़त्म होने वाला है या बिज़नेस का इस साल आखिरी है, तो पूरा का पूरा 50,000 इसी साल का एक्सपेंस है ना, तो उसको एसेट्स कैसे कहेंगे? उसको तो एक्सपेंस बोलेंगे. सो एसेट्स का रिकॉर्डेशन इसी बेसिस पे होता है कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म पीरियड पे चलेगा. सिंपल सी बात समझिए, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस एंड एसेट्स. अगर हम एसेट्स खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड की फैसिलिटी देने के लिए खरीदते हैं कि वो चीज़ हमको लॉन्ग टर्म पीरियड तक सर्विस देगी. बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ एसेट्स, द बंडल ऑफ सर्विसेज. हमने एसी खरीदा तो ये सोच के खरीदा कि वो मेरे बिजनेस को 5 साल तक तो बेनिफिट देगा, सर्विस देगा. और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, तो ये आपके लिए एसेट्स होता कि एक्सपेंस होता? सर ये तो एक्सपेंस होता. यानी 50,000 रुपीज़ की एसी आपके लिए करंट ईयर के लिए क्या हो जाती है? एक्सपेंस. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा. बिकॉज योर पीरियड ऑफ द बिजनेस इज प्री डिसाइडेड. सो सिंपली वी कैन से व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट says that business firm would continue to carry out its operation indefinitely period. That is the fairly long period of time.
एंड इट इज़ द वेरी बेसिस फॉर द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में एसेट्स को इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं कि ये एसेट्स है और ये एक्सपेंस है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसको समझाने से पहले हम आपको समझा देते हैं आपको, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। आप मान लीजिए 11th में पहुंच गए। बचपन में आपने क्लास 1 में एडमिशन लिया होगा, आप क्लास 10 में पहुंच गए। मान लीजिए क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक में, यानी पूरे 10 साल तक सिर्फ आपने पढ़ाई की होती, आपका एग्ज़ाम नहीं होता। सर बहुत अच्छा हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं होता। मान लीजिए नहीं होता, तो क्या हम आपकी प्रोग्रेस जान पाते? क्या हम ये जान पाते कि आप 10 तक पहुंचने के लायक है कि नहीं लायक हैं? यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, आप 10th ईयर तो कंटिन्यू स्टडी करिए, बट हम आपको मेज़र नहीं करेंगे, हम आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रिपेयर करेंगे कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका CGPA कितना है, आपकी ग्रेड पॉइंट कितना है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो सर तो बढ़िया तो होता। तो वही सोचिए बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस 10 साल से चल रहा है, लेकिन हम बिज़नेस के बारे में कोई इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आपके लिए हर एक साल के लिए आपकी इवैल्यूएशन के लिए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हर ईयर को एक एक क्लास में डिवाइड किया गया है और हर ईयर में आपके 2 या 3 बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर जब 31 मार्च या 28 फरवरी आती है तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाला जाता है, जिसमें UT1, UT2, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स प्रेजेंट किए जाते हैं कि उस साल आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए लायक हैं कि नहीं लायक हैं? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कहोगे ये कैसे हो गया सर? जैसे आपका हर साल इवैल्यूएशन होता है, वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि हर बिजनेस का हर ईयर में एक प्री डिटरमाइंड अकाउंटिंग पीरियड के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट की जाएगी, उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट मतलब लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जा सके और पास्ट के साथ उसका कंपैरिजन किया जा सके, एज वेल एज करंट सिचुएशन को किसी अदर कंपनी की करंट सिचुएशन के साथ भी कंपेयर किया जा सके। जैसे आपका कंपैरिजन आपके फ्रेंड के साथ होता है ना, मम्मी कहती है कि देखो वो तो 89% लेकर आए, आप तो 85% लेकर आए। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ड्यू टू द इवैल्यूएशन एवरी ईयर। सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी लगभग वैसा ही है। अकाउंटिंग पीरियड refers to the span of time at the end of which the final statement of enterprises are prepared to know whether is earned profit or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liability at the end of the period. Such information is required by different user at a regular intervals of various purpose, as no firm can wait for a long to know its financial result, as various decisions are to be taken at the regular intervals on the basis of such information. The financial statements are therefore prepared at the regular intervals, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the user. The interval of time is called accounting period. यानी कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि बिज़नेस की जितना स्पैन ऑफ टाइम होता है, जितना टाइम वो वर्क करती है, उस टाइम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो पार्ट्स होता है, जो टाइम इंटरवल होता है जिसमें हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, दिस विल बी नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो सिंपली बात बताएं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए
चाहे वो 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, 12 महीने का हो। जनरली देखा जाता है 99% केसेस में देखा जाता है कि कंपनी जो होती है वो हर 12 मंथ्स पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। एट द एंड ऑफ द मार्च, 31 मार्च को वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है एवरी ईयर, ताकि वो ये कैलकुलेट कर सकें कि उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस क्या है एंड करंट सिचुएशन में उसकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। यही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। ओके और इसके लिए कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन भी बनाए गए हैं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013, इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली। ओके तो हर कंपनी को बनाना भी पड़ता है। नाउ okay there's some important MCQ question. I hope you will enjoy it. Number one question is, during the lifetime of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which basic accounting concept? The first is conservation, number two matching, number three counting period, and none of the above. बताइए क्या सही आंसर होगा? लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए, सोचिए। सर इट इज़ एन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यस यू आर करेक्ट, द राइट आंसर इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंट इन सिमिलर मैनर, द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सोचिए, जब दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस की इंफॉर्मेशन सेम मैनर में प्रेजेंट हो रही है, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? सोचिए सोचिए सोचिए, थिंक। नहीं पता? इट इज़ अ रिलायबिलिटी। कहोगे हाउ सर? रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है ट्रस्टेबल। ट्रस्टेबल का मतलब होता है एनी रिजल्ट विच आर ऑकर्ड अगेन एंड अगेन। जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी रिजल्ट बार बार आता है तो उसको हम लोग रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस का है उसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है सेम मैनर में, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एस्टैब्लिश कर रही है? द रिलायबिलिटी। द नेक्स्ट वन, ऑन कॉन्सेप्ट that a business enterprise will not be sold and liquidated in the near future. So it is very easy, it is a going concern concept. The next one, the primary quality that make accounting information useful for decision making. Think. कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसे डिसीजन मेकिंग के लिए बनाना है, ये मैंने बार बार इसके बारे में अभी लास्ट के वीडियो में आपको बताया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी दो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। यस यू आर करेक्ट, दैट इज़ द कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कहोगे सर ये कैसे हो गया? यस, कंपेरेबिलिटी मतलब खुद से कंपेयर करना, कंसिस्टेंसी क्वालिटी क्या बताती है? दूसरों के साथ कंपेयर करना। तो कंपैरिजन ही एक बेसिस है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जब एक बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले यही देखना चाहता है कि हम उससे बेटर क्यों नहीं हैं, या हम उससे बेटर हैं तो क्यों हैं। यही दो चीज़। तो खुद से कंपैरिजन करना, दूसरों से कंपैरिजन करना, ये प्राइमरी एम होता है एवरी कंपनी इन इंटरेस्टेड यूज़र रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. What is a cost concept? This concept required that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation, making the assets ready to use. It is very easy. अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देखें तो ये फोकस करता है एसेट्स पे पहले, यानी एसेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहली बात। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all assets are recorded in the books of account at their purchase price. यानी किसी भी एसेट्स की प्राइस को रिकॉर्ड करते वक्त
रिकॉर्ड करना है, लेकिन कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करना है इसके लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें गाइड करता है। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस प्राइस? ये जो परचेस प्राइस बोला है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है सर? परचेस प्राइस मीन्स एक्विजिशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ठंड गर्मी का मौसम है तो आपके घर एसी होगा। सपोज़ एसी नहीं है आपके घर, गर्मी बहुत पड़ रही, तो आपने अपने पापा से कहा पापा पापा एसी लेकर आइए। पापा भी इस समय चिंता में है, लॉकडाउन है, तो चलो ठीक है मान लो लॉकडाउन नहीं है, एसी मिल रहा है मार्केट में। वो गए एसी लेने, दुकान पे गए, पूछे कितने का है, कहा 50,000 रुपये का है। आपने कहा ठीक, तो व्हाट इज़ अ एक्चुअल प्राइस ऑफ दी सर 50,000। सो क्या पापा अपनी एसेट्स को 50,000 से इंक्रीज़ कर देंगे? हाँ सर, यही तो मेरी एसेट्स हुई एसी। क्या अब आप खुद सोचिए, क्या पापा 50,000 रुपये देंगे और एसी की हवा आने लगेगी? नहीं सर, 50,000 रुपये देंगे तो एसी तो मिलेगी। अभी एसी को घर लाना है, एसी को घर पे लाना है, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, एसी को इंस्टॉल कराना है, फिर एसी के लिए मुझे स्टेबलाइज़र लेना है, एसी के लिए मुझे स्विच लगाना होगा ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ सके। क्या ये सारी एसेट्स से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है? यही तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में, यही तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स की प्राइस का वैल्यूएशन उसकी परचेस प्राइस पे होनी चाहिए। और परचेस प्राइस का मतलब सिर्फ 50,000 नहीं है जो उसने दुकानदार को दिया है, जो आपके पापा ने 50,000 रुपये दुकानदार को दिया, वही उसकी कॉस्ट नहीं है। मान लीजिए एसी को घर में लाने में लग गया 1,000 रुपये, लगता भी है, ट्रॉली वाली वाले ज़्यादा ले लेते हैं। अगर दूर से आप खरीद के लेके आ रहे हो, पास से लेके आ रहे हो तो 500 रुपये, चलो ठीक है 500 रुपये कर देते सर, आप बहुत महंगी बात कर रहे हैं, चलो ठीक है यार 500 रुपये। एक चीज़ तो फिक्स्ड है, इंस्टॉलेशन चार्ज फिक्स्ड है 1,200 रुपये। कंपनी वाला खुद आपको कहेगा कि मैं आपके घर इंस्टॉल करके आऊँगा और 1,200 रुपये लूँगा। अब ये मत सोचने लगेगा कि मैंने लगवाया होगा तो 1,200 रुपये दिया होगा, नहीं, मैंने जब लगवाया था तो 1,000 रुपये दिया था। अब इस समय करंट प्राइस जो है 1,200 रुपये। अब ये मत सोचने लगेगा कि सर आप एसी तो नहीं लगवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने लगवाया था और आप में इन्फ्लेशन आ गया है तो 100-200 रुपये ऊपर नीचे चलता है। कम टू द पॉइंट कि 50,000 रुपये का ख़रीदा, 500 रुपये घर लाने में लगा, 1,200 रुपये लगा किस चीज़ पे, इंस्टॉल कराने में, और इंस्टॉल कराने के साथ 500 रुपये फुटकर भी लगता है। ये फुटकर खर्चा क्या है? जैसे उसके लिए स्विच हो गया, उसके लिए स्टेबलाइज़र हो गया, स्टेबलाइज़र को जोड़ोगे तो सीधे 2,000 रुपये स्टेबलाइज़र का होता है। ठीक है, चलो इतना तो 3-53 54,200। सो बुक में एसेट्स की वैल्यू क्या रिकॉर्ड होगी? 54,200। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द cost concept, all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation cost, installation cost and other cost for making the assets ready to use. Okay, the next one, it is a very important concept, dual expect concept, and it is my favorite concept, and this concept is based on double entry system. And think again, who developed the double entry system? मैंने बताया था in the chapter number 1 history of accounting. सर याद आ रहा है, yes, लूका पेसियोली in 1494, मुझे इससे बार बार गलती हो जाती है, in 1494 लूका पेसियोली ने एक बुक लिखा था इस डबल एंट्री सिस्टम पे, और वो बुक इतनी पॉपुलर हुई कि उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग का कह सकते हो ओरिजिन है एक तरह से। टुडे हमारे वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम एंड इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट।
ओके, सो याद रहेगा, हु propound the double entry system? Luca Pacioli. In which year? 1494.